Hello, dear students, and welcome back to English with Professor Tabassum. If you are new to my channel, then let me tell you that on this channel, I'll be covering up the complete syllabus for Telangana Intermediate First Year and Second Year English. In my previous video, I have explained the complete poem Happiness, that is the first poem in the textbook. So today we are going to discuss the annotations for the poem Happiness along with two paragraph questions. So let us begin. Okay, let us see the first annotation. I asked the professors who teach the meaning of life to tell me what happiness is. मैंने उन प्रोफेसर से पूछा जो मुझे बताते हैं ज़िंदगी का मतलब कि वो मुझे बताएं कि खुशी क्या होती है. So you have to write in 4 parts, that is introduction first, then the context and meaning, and then the critical comment. Okay, so let us see the introduction first. In the introduction, you have to write about the author and the name of the poem. Let us see. These lines are extracted from the poem Happiness, written by Carl August Sandburg. This poem is a part of his collection of poems, Chicago Songs. He is a famous American poet and winner of 3 Pulitzer Prizes. He is popular for his biography on Abraham Lincoln. यानी कि इंट्रोडक्शन में हमें लिखना होता है कि हैप्पीनेस पोएम से इस लाइन को लिया गया है और इस पोएम को कार्ल ऑगस्ट सैनबर्ग ने लिखा है और ये जो पोएम है ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स जिसका नाम है शिकागो सॉन्ग्स उसमें से एक पोएम है और जो ऑथर है कार्ल ऑगस्ट सैनबर्ग वो अपनी बायोग्राफी जो उसने अब्राहम लिंकन के ऊपर लिखी है वो उसके लिए फेमस है. वो एक फेमस अमेरिकन पोएट है जिसे 3 पुलित्ज़र प्राइजेस मिल चुके हैं. Actually, Pulitzer Prize is a prize which is given in many categories like journalism, poetry, drama, music, etc. Okay, so he has received it for poetry. Then second one is the context and meaning. Here the writer has been seeking the real meaning of happiness. These words are spoken in this context. The poet depicts the narrator's quest to know what happiness is. In this process, he met many scholarly persons like professors to know the answer. He continued his search to find the answer but failed. He presumed that the professors might help him because of their vast and rich experience in teaching the meaning of life, but unfortunately, it yielded no results. अब कॉन्टेक्स्ट में और मीनिंग में हमें ये लिखना होता है कि ये जो लाइंस है इसमें स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है, बैकग्राउंड कैसा है और इन लाइंस का रियल मीनिंग हमें लिखना होता है. तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है कि जो राइटर है वो ढूंढ रहा है खुशी की सही मीनिंग, यानी कि खुशी का असली में मतलब होता क्या है. और दीज वर्ड्स आर स्पोकन इन दिस कॉन्टेक्स्ट और इसी कॉन्टेक्स्ट में इन वर्ड्स को बोला गया है. अब जो पोएट है, नरेटर है, वो डिपिक्ट करता है अपनी क्वेस्ट के बारे में, यानी कि वो अपनी तलाश के बारे में डिपिक्ट करता है कि वो ढूंढ रहा है कि खुशी क्या होती है. इन दिस प्रोसेस ही मेट मैनी स्कॉलरली पर्सन, यानी कि इस प्रोसेस में उसने बहुत सारे स्कॉलरली पर्सन से मुलाकात की जैसे प्रोफेसर्स, ताकि वो आंसर जान सके. फिर ही कंटिन्यूड हिज सर्च टू फाइंड द आंसर बट फेल. फिर उसने अपनी सर्च को कंटिन्यू किया लेकिन वो फेल हो गया. उसे लगा कि शायद प्रोफेसर्स उसकी मदद कर देंगे उसके क्योंकि प्रोफेसर्स के पास बहुत ज़्यादा रिच एक्सपीरियंस है टीचिंग में, इसलिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोफेसर्स के पास भी कोई आंसर नहीं होता, कोई यील्ड नहीं होती, कोई रिजल्ट नहीं मिलता उसे. देन क्रिटिकल कॉमेंट. इन क्रिटिकल कॉमेंट यू बिकम द critique here. Okay, the narrator's quest to know what happiness is highly appreciable, and the message is clear and loud that our quest for knowledge should continue throughout our life. तो इसमें जो क्रिटिकल कमेंट है इसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो कि आप क्या समझे हो पोएम से. द नरेटर जो है वो अपनी लंबी जो खोज है उसकी खुशी को ढूंढने की,
उसके बारे में बताता है और वो बहुत ही अप्रिशिएटेबल है इस पोएम में। और वो क्लियर है, लाउड है एंड उसकी जो क्वेस्ट है फॉर नॉलेज वो उसे हमेशा कंटिन्यू करते रहना चाहिए, उसे हमेशा खुशी तलाश करती रहनी चाहिए अपनी पूरी ज़िंदगी भर। एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। ओके, सो let us see the second annotation. They all shook their heads and gave me a smile as though I was trying to fool with them. यानी कि सारे प्रोफेसर्स ने सिर्फ अपना सर हिलाया और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, जैसे कि मैं उन प्रोफेसर्स का मजाक उड़ा रहा हूँ। Introduction. These lines are extracted from the poem Happiness, written by Carl August Sandburg. This poem is a part of his collection of poems, Chicago Songs. He is a famous American poet and winner of 3 Pulitzer Prizes. He is popular for his biography on Abraham Lincoln. अगर आप देखें तो इंट्रोडक्शन वही सेम है, वही ऑथर का नाम है, पोएम का नाम है, कौन सी कलेक्शन है, शिकागो सॉन्ग्स, 3 पुलित्ज़र प्राइजेस ऑथर को मिल चुके हैं और ऑथर जो है अपनी बायोग्राफी ऑफ अब्राहम लिंकन के लिए फेमस है। चलिए अब देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। द राइटर कार्ल ऑगस्ट सैनबर्ग हैज़ बीन सीकिंग द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि कार्ल ऑगस्ट सैनबर्ग अभी भी ढूंढ रहा है खुशी का मतलब। These words are spoken in this context, और इसी कॉन्टेक्स्ट में इन वर्ड्स को बोला गया है। They all shook their heads and gave me a smile as though I was trying to fool with them. The poem vividly explains the poet's unending search to understand what real happiness is. यानी कि ये पोएम में थ्रू आउट द पोएम बस यही एक्सप्लेन किया जाता है कि पोएट किस तरह अपनी सर्च को बिना ख़त्म किए बस ढूंढने जा रहा है मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का मतलब। इन दिस प्रोसेस ही मेट मैनी पीपल लाइक प्रोफेसर्स, फेमस बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हु सुपरवाइज द वर्क ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ बट टू नो अवेल। यानी कि इसी प्रोसेस के दौरान, इसी सर्च के दौरान, खुशी को ढूंढने की सर्च के दौरान वो बहुत सारे प्रोफेसर्स से मिलता है, बहुत सारे बिजनेस एग्जीक्यूटिव से मिलता है, यानी कि जो कंपनी में काम करते हैं, जो मैनेज करते हैं वर्क को, वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो सुपरवाइज करते हैं वर्क को हज़ारों एम्प्लॉयज़ के, लेकिन उनके पास भी कोई आंसर नहीं होता। They not only failed to give a satisfactory answer, but they also felt that he was making fun of them. वो ना सिर्फ एक अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर उन लोगों ने दिया, खाली अपना सर हिलाया, बल्कि उन्हें तो ये लगा कि कार्ल ऑगस्ट सैनबर्ग उनका मजाक उड़ा रहा है। In fact, he made a sincere attempt to find the real meaning of happiness but was disappointed. यानी कि ऑथर ने, कार्ल ऑगस्ट सैनबर्ग ने अपनी पूरी कोशिश की मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस को जानने की, लेकिन वो तो डिसअपॉइंट ही हो गया एंड में। Then, critical comment. The writer, in his attempt to find happiness, finally came to the conclusion that happiness lies in the simplicity of life. इस क्रिटिकल कमेंट में जो राइटर है वो फाइनली जान पाता है कि खुशी क्या होती है, उसे एक कंक्लूजन मिलता है, एक फाइनल आंसर मिलता है कि खुशी जो है वो सादेपन में है, यानी कि सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ में है। लाइफ को सिंपल तरीके से जीना ही खुशी है। चलिए अब सी बिट देखते हैं, दैट इज़ द थर्ड एनोटेशन। एंड देन वन संडे आफ्टरनून आई वैंडर्ड आउट अलॉन्ग द डेस्प्लेन्स रिवर, यानी कि एक संडे आफ्टरनून मैं घूम रहा था डेस्प्लेन रिवर के पास। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। These lines are extracted from the poem Happiness, written by Carl August Sandburg. This poem is a part of his collection of poems, Chicago Songs. He is a famous American poet and winner of 3 Pulitzer Prizes. He is popular for his biography of Abraham Lincoln. तो इंट्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो इंट्रोडक्शन सब में सेम है। ओके, सो कॉमन इंट्रोडक्शन आप याद कर लो। देन कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग हमेशा डिफरेंट ही होती है हर एनोटेशन की।
The writer has been seeking the real meaning of happiness. These words are spoken in this context. यानी कि राइटर जो है वो रियल मीनिंग असली मतलब ढूंढ रहा है हैप्पीनेस का, और इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इसी सिचुएशन के अंदर इन वर्ड्स को बोला गया है. कौन से वर्ड्स? And then one Sunday afternoon, I wandered out along the Des Plaines River. Des Plaines River एक river है US में, okay? The writer Carl Sandburg has been wandering seeking the meaning of happiness. यानी कि कार्ल सैनबर्ग यहाँ वहाँ घूम रहा है बस ढूंढने खुशी का मतलब. In his attempt to find a satisfactory answer, he met intellectuals like professors and business tycoons, but no one gave a satisfactory answer. यानी कि इसी कोशिश में कि वो खुशी को ढूंढ सके, कार्ल ऑगस्ट सैनबर्ग मिलता है बहुत सारे इंटेलेक्चुअल से, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों से, जैसे कि प्रोफेसर्स, बिजनेस टाइकून्स यानी कि बहुत वो लोग जो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां पा चुके हैं बिजनेस के वर्ल्ड में, वो होते हैं बिजनेस टाइकून्स. ओके, तो वो ये सब लोगों से मिला, लेकिन उसे कोई भी एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला. ही डिड नॉट वांट टू गिव अप हिज अटेम्प्ट. Finally, when he was walking along the banks of Des Plaines River, he saw a group of Hungarians with their women and children. जब ऑथर ने बिल्कुल ही गिव अप नहीं किया और वो ऐसे ही घूम रहा था बैंक्स ऑफ Des Plaines रिवर पे, तो उसने देखा कि एक ग्रुप है हंगेरियंस का. हंगेरियंस एक रेस होती है हंगरी के रहने वाले लोगों की. तो उसने हंगेरियंस को देखा, वो अपनी औरतें और बच्चों के साथ थे. Their worldly possessions were an accordion and a keg of beer, but they looked extremely happy. यानी कि इन लोगों के पास सिर्फ एक एकॉर्डियन था. अब यहाँ पर द वर्ड एकॉर्डियन का मतलब होता है एक म्यूजिकल डिवाइस. ओके, एक बॉक्स टाइप डिवाइस होता है जिसमें से म्यूज़िक बजता है. तो ये हंगेरियंस के पास में ये एकॉर्डियन है और एक केग ऑफ बियर है. यहाँ पर द वर्ड केग का मतलब होता है कंटेनर. ओके, बट दे लुक्ड एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं. ही एट वंस अंडरस्टैंड्स वॉट हैप्पीनेस इज़. पोएट को एक ही बार में समझ आ जाता है कि खुशी क्या होती है. इट इज़ लिविंग इन द प्रेजेंट, यानी कि आज में जीना ही खुशी है. ब्यूटी ऑफ लाइफ लाइज इन इट्स सिंप्लिसिटी, नॉट इन सक्सेस, वेल्थ और फेम. यानी कि ज़िंदगी की खूबसूरती सादेपन में है, सिंप्लिसिटी में है, सिंपल लिविंग में है. कामयाबी या बहुत सारी दौलत या बहुत सारा फेम, ये ब्यूटी नहीं है लाइफ की, ये खुशी नहीं है. सिर्फ सिंप्लिसिटी ही ब्यूटी ऑफ लाइफ है. Critical comment. The poet's wanderings and his discussion with the scholarly people yielded no answers for his quest. यानी कि पोएट जो यहाँ वहाँ घूम रहा था, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों से बात कर रहा था, यानी कि स्कॉलरली पीपल, तब भी उसे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला. यानी कि इट yielded no answers for his quest. उसे कोई भी जवाब नहीं मिला अपनी लंबी सर्च का खुशी के बारे में. सरप्राइजिंगली, बहुत सरप्राइज की बात थी, ही फाउंड हिज आंसर एज ही वॉच्ड अ स्मॉल कॉन्ग्रीगेशन ऑफ हंगेरियंस बीनीथ अ ट्री. यानी कि सरप्राइज की बात तो ये थी कि उसे अपना जवाब तब मिला जब उसने देखा एक झाड़ के नीचे कैसे जो हंगेरियंस है वो एक स्मॉल सी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, यानी कि कॉन्ग्रीगेशन है. तो उसे उसके सवाल का जवाब मिल गया. तो ये था हमारा क्रिटिकल कमेंट. First question, explain the narrator's experience in finding out what happiness is. यानी कि हमें एक्सप्लेन करना है कि नरेटर जो ऑथर है उसका क्या एक्सपीरियंस है जब वो हैप्पीनेस की तलाश कर रहा था. The poem Happiness is written by Carl August Sandburg. It is a part of his collection of poems, Chicago Songs. He is a famous American poet and winner of 3 Pulitzer Prizes. He is popular for his biography on Abraham Lincoln. यानी कि ये जो पोएम है ये हैप्पीनेस है जिसे कार्ल ऑगस्ट सैनबर्ग ने लिखा है. The narrator wants to know what brings happiness in life. यानी कि नरेटर ये बात को जानना चाहते हैं कि कौन सी वो चीज़ है जो ज़िंदगी में खुशी लाती है. ही इंक्वायर्स विथ मैनी प्रोफेसर्स बट इन वेन.
Even the top executives are consulted, but he gets no answer. यानी कि जो ऑथर है वो प्रोफेसर्स के पास जाते हैं, एग्जीक्यूटिव्स के पास जाते हैं, फिर भी उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिलता. वन संडे आफ्टरनून ही वैंडर्स अलोंग अ रिवर. यानी कि एक संडे आफ्टरनून को वो ऐसे ही रिवर के पास घूम रहे थे. ही कम्स अक्रॉस अ ग्रुप ऑफ हंगेरियंस along with their women and children. He at once understands what happiness is. Happiness is nothing but living in the present and being close to our near and dear in the lap of nature. Happiness is not wealth or success or fame. यानी कि एक संडे आफ्टरनून जब वो ऐसे ही रिवर के पास घूम रहे थे, तब वो देखते हैं झाड़ के नीचे कुछ हंगेरियंस को अपनी बीवी और बच्चों के साथ. तभी उन्हें रियलाइज़ हो जाता है, तभी उन्हें समझ आ जाता है कि हैप्पीनेस किस चीज़ में है. हैप्पीनेस और कुछ भी नहीं है, बल्कि आज में जीना है, इस पल को जीना है. अपने जो रिश्तेदार हैं, जो करीबी लोग हैं, उन लोगों को अपने करीब रखना है और नेचर के लैब पे रहना है. यानी कि नेचर से अपने आप को करीब रखना है. हैप्पीनेस दौलत में नहीं है, सक्सेस कामयाबी में नहीं है और शोहरत फेम में भी नहीं है. हैप्पीनेस है सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ में, आज में जीने में और अपने करीबी लोगों को अपने पास रखने में और नेचर से करीब रहने में. Second question. Seeing helps one better in understanding than listening. To justify the statement with reference to the poem Happiness. यानी कि जब हम चीज़ों को देखते हैं तब हम उन्हें बेहतर समझ पाते हैं, बजाय इसके कि हम चीज़ों को सुने. तो अब इस स्टेटमेंट को आप पोएम्स के ज़रिए एक्सप्लेन करोगे. The poem Happiness is written by Carl August Sandburg. This poem is extracted from the poem Chicago Songs. He is a famous American poet and a winner of 3 Pulitzer Prizes. He is popular for his biography on Abraham Lincoln. तो introduction तो बिल्कुल same ही है. The writer's quest to find what happiness is, he interacted with eminent people such as professors who teach the essence of life. यानी कि फिर वो एग्जीक्यूटिव्स के पास गए जो कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर अपनी ताकत इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके पास से कम आंसर मिल जाए कि खुशी क्या होती है. He was not happy with their answers and they even seemed to suspect his intentions. यानी कि ऑथर को इन लोगों के पास से भी अच्छा जवाब नहीं मिला तो ऑथर खुश नहीं था. यहाँ तक कि ये लोग तो ये समझ बैठे कि कार्ल ऑगस्ट सैनबर्ग उनका मजाक उड़ा रहा है. यानी कि वो उसके इंटेंशंस, ऑथर के इंटेंशंस के ऊपर डाउट कर रहे थे, सस्पेक्ट कर रहे थे. One day, as he was wandering by the Des Plaines River, he saw a group of Hungarians with their wives and children, an accordion and a keg of beer. Finally, he realized that simplicity could provide happiness where wealth and success and fame and power failed. He realizes how they find happiness in their simple living. तो एक दिन जब डिस्प्लेन्स रिवर के पास ऑथर घूम रहा था तब उसने देखा कि एक ग्रुप है हंगेरियंस का, यानी कि हंगरी से रहने वाले लोगों का. वो अपनी बीवी बच्चों के साथ एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसको अकॉर्डियन कहते हैं, एक बॉक्स होता है जिसमें से म्यूज़िक की आवाज़ आती है, वो और एक केग ऑफ बियर है, एक कंटेनर ऑफ बियर है उन लोगों के हाथ में और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं. तो ऑथर देखता है कि ज़िंदगी की असली खूबसूरती जो है वो सादेपन में है, सिंप्लिसिटी में है और यही इंसान को खुशी देती है. जो बहुत ज़्यादा दौलत होती है, कामयाबी होती है, फेम होती है, पावर होती है, ये सब तो बस फेल है. He realizes how they find happiness in their simple living. उसे ये रियलाइज़ होता है कि कैसे खुशी मिल सकती है सिंपल लिविंग में.